नमस्कार, मैं ठक्कर आशीष एन, केमिस्ट्री टीचर। आज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, सम बेसिक रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूँ। ये आपको IIT, JEE, नीट और 11 साइंस के 12 चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे साथ नोट पेन लेके बैठ जाइए। I will teach you the rules of IUPAC nomenclature. Let's start. IIT, JEE, NEET and Standard 11 CBSE. Some basic principle of organic chemistry. IUPAC rules for nomenclature organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण की विधि हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, there is 3 type of hybridization. मुख्यत्वे 3 प्रकार के IUPAC नोमेनक्लेचर में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण होते हैं। sp3 जो सिंगल बॉन्डेड है 25% 1s plus 3p, so 100 divided by 4, 25% s character, tetrahedral structure and bond length is 154 picometer. Due to the less s character, less electronegativity, so the bond length is maximum and the shape is a tetrahedral, चतुष्फलकीय shape होगा। sp2 hybridization 100 divided by 3, 1s plus 2p, so 33% s character, planar shape एक समतलीय आकार होगा और जो एस कैरेक्टर बढ़ने से उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इंक्रीज, कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ेगी जिससे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी 134 पिकोमीटर। एंड थर्ड हाइब्रिडाइजेशन इज sp ट्रिपल बॉन्डेड, दैट इज sp डबल बॉन्डेड विथ sp2 एंड सिंगल बॉन्डेड देयर sp3. So the S character is 50% because 1s and 1p 100 divided by 2, so 50% S character, maximum electronegativity of carbon, so bond length is shorter and the shape is a linear and one रेखीय आकार होगा 120 पिकोमीटर। सो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो नंबर दिया है 1 2 3 4. What is the hybridization of carbon number 1? So it is a single bonded, so sp3. It is a double bonded containing, so sp2 and sp3. So the hydrogen is also sp3. The hydrogen which is attached with carbon, that is also the same hybridization, and which bond is shorter, and so the 2-3 number bond carbon bond is shorter. सबसे शॉर्टर बॉन्ड कौन सा होगा, तो 2-3। ऐसा क्वेश्चन कई बार JEE नीट में हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड, शेप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, बंधारणीय निरूपणन बोलते हैं उसको। देयर इज 3 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देयर इज 3 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट मीन्स ऑल सिंगल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज डिटैच्ड, अलग अलग करके दिखाते हैं। कंडेंस यानी कि उसको शॉर्ट में दिखाते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। जो ये बॉन्ड जो लास्ट है वो CH3 बोलते हैं इसको, ये भी CH3 और C डबल बॉन्ड वो ऐसे लिखते हैं। सो देयर इज 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पॉइंट इज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हियर there is methane, the structure of methane. This is a tetrahedral, चतुष्फलक आकार है।
उसमें जो ये सिंगल लाइन है वो प्लेनर लाइन है, जो डॉटेड लाइन है वो प्लेन के पीछे की साइड का है, और जो ये जो हाइड्रोजन दिखा है ये प्लेन के बाहर की तरफ हमारी तरफ आ रहा है। सो जो डार्क लाइन है दिस इज नियर टू द व्यूअर, above from the viewer, far from the viewer, and this too is a planar representation, 3D representation of organic molecule. Now we start the main point of our portion, IUPAC nomenclature. The full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. If there is one carbon, that is methane, and short form was ME. 2 carbon CH3 ethane, short form is ET. 3 carbon propane, PR, short form. 4 carbon CH3 butane. 5 carbon pentane. 6 carbon hexane. 7 carbon heptane. 8 carbon octane. 9 carbon nonane. 10 carbon decane, and 11 carbon dodecane. So this is the basic of organic chemistry. You first of all remember that 1 carbon is methane, 2 carbon is ethane, 3 carbon is propane, 4 carbon is butane, 5 carbon is pentane, 6 carbon is hexane, 7 carbon is heptane, 8 carbon is octane, 9 carbon is nonane, 10 carbon is decane. Okay. Before we start IUPAC nomenclature, first of all you learn about the branch. उसको हम शाखाएं बोलते हैं. What is the name of the branch? If two methyl group attach on single carbon, that is isopropyl branch, and there is one I. उसका short form है I. Second branch is if the CH is attached with one CH3 and second is CH2CH3, that is called secondary butyl. द्वितीयक ब्यूटाइल बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म S बोलते हैं. थर्ड इज isobutyl, means 4 total carbon means butyl, and the last carbon contains CH3, 2 CH3 on single carbon and then CH2, that is isobutyl branch. You must remember this branch name. And another branch is tert-butyl, means the carbon attached with another 3 carbon, that is tertiary carbon, so it is called tert-butyl chain. Another chain, if 5 carbon is in a round circle and the middle carbon is attached with 4 carbon, that is neopentyl branch. During IUPAC nomenclature, the I of isopropyl is in calculation, but secondary is not in calculation, but B is in calculation. आइसो का I कैलकुलेट करना है, T कैलकुलेट नहीं करना है, ब्यूटाइल का B. सो हमने बोला है एस्टिक में नहीं बैठेंगे, AC आइसो नियो उसको हम इन करेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस ब्रांच before IUPAC nomenclature. Now let's start the rules of IUPAC. First rule is that the parent chain, सबसे लंबी chain पसंद करनी है. So when we see the structure for IUPAC nomenclature, first you see the longest chain. This is the longest chain. This chain is also but short chain. This chain is also short chain. So this is the longest chain. The first rule to decide the first parent chain, which is the longest chain. So here the 9 carbon chain is the longest chain, is a parent chain. Here if you write down this chain, this is the 8 carbon chain, this is the shorter chain. So we first decide the longest chain. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी ये चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 2. दिस रूल इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच. इफ the parent chain is decided 9 carbon,
Now these two branch, if we numbering this chain from left side LHS, then the branch is second number and 6 number, so total is 8. If we numbering this chain from left right hand side, then 4 plus 8 branch number, so it is 12. So correct total is 8, less total is required for the IUPAC nomenclature. So numbering from the left hand side is correct for this nomenclature. This is the second rule. Rule number 3, if first rule is completed, longest chain is decided, नंबरिंग इज़ डिसाइडेड, नंबर हमने दे दिया है, सबसे लंबा चेन पसंद कर लिया है, तो पहले जब IUPAC नोमेनक्लेचर देंगे तो पहले कौन सी ब्रांच, विच ब्रांच फर्स्ट वी स्पीक और राइट डाउन. सो फर्स्ट मिथाइल इन ABCD in alphabetical order, ethyl is a first, E is a first, so the name is 6-ethyl. This branch is called ethyl. 2-methyl and 9-carbon, that is non-N. Always parent chain is after the name. अगर हम अपने पिताजी का नाम पीछे लिखते हैं, ऐसे ये पेरेंट चेन का नाम पीछे लिखना होता है non-N. ठीक है. रूल नंबर 4, अगर 2 equal groups है, that is di, and 3 equal group is there, that is tri, 4 equal group is tetra, 5 equal group, that is penta. Okay, in sequence. Here the examples. अब हम सारे रूल अप्लाई करेंगे. देखिए, अगर आपको ये नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, तो पहले ये डिसाइड कर लो ये लॉन्गेस्ट चेन है. चलो इधर से नंबर देंगे, इधर से नंबर देंगे, सो इक्वल आएंगे 2 and 4, इधर से देंगे 2 और 4. चलो ओके. अब 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पर 4 भी मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज़ कॉल्ड डाई. सो द नेम इज़ 2,4 डाई मिथाइल 5 carbon parent chain, that is pentane. Next example, we give the number from left hand side because हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दिया है, क्योंकि जो टोटल होगा, देखिए 2 + 2 + 4, अगर इधर से हम देंगे 2 + 4 + 4 होगा 10 हो जाएगा, तो हम इधर से नंबरिंग देंगे जैसे टोटल कम होना चाहिए, ब्रांच का टोटल कम होना चाहिए. सो द नेम इज़ 2, 2 and 4, सो 3 मिथाइल ग्रुप हो गए. So 2, 2, 4 trimethyl 5 carbon, that is pentane. In the same way, another example I bring for you. Longest chain is this 7 carbon chain. Now branching from here 3 and 4. If we reach from right hand side, then branching is very far. So this is the ethyl branch. This is the methyl branch. So first of all we write down the ethyl branch on 3 numbers. So it is, the name is 3-ethyl 4,4 dimethyl, there is 2-methyl heptane. ठीक है, 7 carbon is heptane. Rule number 5, first of all we take examples. Here the longest chain, first rule. Second, numbering from left hand side and right hand side, both are equal. Then ethyl and methyl can decide the numbering. अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो भी 3, 6 आएगा, यहाँ से भी नंबर देंगे तो भी 3, 6 आएगा. तो कौन सा नंबर करेक्ट होगा? जो यहाँ से देंगे तो मिथाइल आगे आएगा, और यहाँ से देंगे तो इथाइल. तो इथाइल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक आगे नंबर मिलना चाहिए. सो करेक्ट नेम इज़ 3-ethyl 6-methyl octane, and the wrong name is 6-ethyl 3-methyl octanes. So the first ethyl is write down and then methyl is write down. Rule number 6 is the main rule for branching.
अगर हमने आपको आगे दिखाई जो ब्रांच है, ये ब्रांच, इस ब्रांच के अलावा अगर कोई बड़ी ब्रांच बनती है, जैसे कि ये ब्रांच है, तो उसका नोमेनक्लेचर सीखना होगा। जो ये हमने दिखाई उसके अलावा कि ये जो नई ब्रांच है, you have to first write down the name of this branch. You give the number from the branch 1 2 3 4. Now the name of this branch is 1,3-dimethyl butyl से इल लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मीथेन है, ठीक है, उसमें से जो मिथाइल बनता है, मीथेन से मिथाइल बोलते हैं, ऐसे ब्यूटेन ब्यूटाइल, ये जो 4 कार्बन है। सो द नेम ऑफ दिस ब्रांच इज़ 1,3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसमें सब रूल अप्लाई हो जाएंगे। इसमें ब्रांच का रूल है, देखिए ये 10 कार्बन का जो कंपाउंड, इधर से 10 कार्बन हो रहा है और इधर से आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेट चेन है हमने क्यों पसंद नहीं की, तो उसका रूल ऐसा है कि मैक्सिमम ब्रांच वाली चेन पसंद करनी है। तो अगर हम ये चेन पसंद करेंगे तो ये ब्रांच होगी और एक ये 2 ब्रांच होगी। अगर हम ये पसंद करते हैं तो देखिए यहाँ से ये 2 ब्रांच आ गई और यहाँ से तीसरी ब्रांच। सो हियर द नंबरिंग फ्रॉम हियर इज़ बेटर बिकॉज मस्ट रिक्वायर बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इज़ देयर। एंड सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या है कि हमने इधर से क्यों नंबर नहीं दिया, तो उसमें भी जो रूल है, जो ब्रांच है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, यहाँ से देंगे तो कम नंबर आएगा। अब हम ये ब्रांच जो 3rd नंबर पर है जो डाइमिथाइल होगा, ठीक है, और ये जो 5 नंबर पे जो ब्रांच है उसका नेम हमने इधर कर दिया है, इसका नाम है 5 नंबर पे 1,3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल। नाउ अब देखिए डाई जो है वो कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसका नोमेनक्लेचर जो करना है 2-इथाइल ब्यूटाइल, इस ब्रांच का नाम क्या होगा, देखिए 2-इथाइल ब्यूटाइल। सो इसका नोमेनक्लेचर जो है 5 × 2-इथाइल ब्यूटाइल 3,3-डाइमिथाइल डेकेन होगा, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट नेम। अब ये इथाइल पहले आएगा इसलिए हमको इथाइल वाला पहले बोलना पड़ेगा। 5 × ब्रैकेट जो 5 नंबर पे है उसका ब्रैकेट में किया, इसको 2-इथाइल ब्यूटाइल बोलते हैं क्योंकि ये 4 कार्बन है, एंड 3,3-डाइमिथाइल डेकेन इज़ द करेक्ट नेम। इन द सेम वे एक ऐसा ही दूसरा जो हमारी टेक्स्ट बुक में IUPAC नोमेनक्लेचर में चैप्टर 12 में दिया है, वही मैंने ये एग्जाम्पल लिए है जो आपको बोर्ड में भी काम आएंगे और आपके एग्ज़ाम जो स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम में, उसमें भी आपको एक काम आएंगे। CH3 CH2 देखिए ये सबसे लंबी चेन है, इसमें 2 ब्रांच है, ये आइसोप्रोपाइल ब्रांच है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रांच है। तो मैंने आपको सिखाया कि सेकेंडरी का S और टर्सरी का T कैलकुलेट नहीं करते, बट उसका ब्यूटाइल कैलकुलेट करते हैं, आइसो का I कैलकुलेट करते हैं, नियो का N कैलकुलेट करते हैं। सो इस वजह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये नंबर इधर से क्यों दिया कि 4 + 5 = 9, इधर से दे गए तो दूर होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमने पसंद कर ली। अब पहली ब्रांच कौन सी बोलनी है, तो पहले ब्यूटाइल बोला जाता है, ABCD के अनुसार बी पहले आता है। तो ब्यूटाइल कौन से नंबर पे है, 5, तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस ब्रांच इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 आइसोप्रोपाइल एंड 10 कार्बन इज डेकेन, ओके।
उसका मैंने दूसरा नाम भी दिया है जो 4 नंबर पर जो है 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसको हम 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोलते हैं, और डेकेन, ये भी करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। जो आप करेंगे वो घबराइए मत, आप ट्राई करिए, आपसे भी अच्छी तरह से नोमेनक्लेचर होगा, ये सी मेरी आशा है। तो आप मेरे साथ साथ ये आप लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। एक दूसरा नोमेनक्लेचर देखिए, सबसे बड़ी चेन ये है, इधर से भी 5 नंबर होगा, इधर से भी 5 नंबर। इस ब्रांच का नेम हम दो नियो नॉनेन, ये जो है नियो ब्रांच है, और दूसरा नाम जो हम देंगे 1 2 3 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, ये 3 कार्बन है, प्रोपाइल होगा 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, और दूसरा नाम नियो पेंटाइल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चलो 5 नंबर इंटू ब्रैकेट 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल एंड 9 कार्बन है, नॉन होगा, अथवा उसका दूसरा नाम होगा 5 नियोपेंटाइल नॉन एन। अब थोड़े साइक्लिक लेंगे, जो 5 कार्बन का जो पंचकोण है उसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, उसको रियल में ऐसे लिखते हैं CH2 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 CH2। This is the cyclic pentane that is called cyclopentane। चलो इसी तरह से सेम ये जो नोमेनक्लेचर, इसका रूल भी आपको देखना है। ये जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ये जो ब्रांच है उसको मिथाइल बोलते हैं, इसको देखिए ऐसे CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा, दैट इज़ प्रोपाइल। तो हम उसको मिथाइल एंड प्रोपाइल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल आएगा ABCD के अनुसार, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेन। अनदर नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड देखिए, मोर ब्रांच कैन गेट लेस नंबर, दैट इज द रूल। जैसे ज़्यादा ब्रांच है उसको लेस नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रांच ज़्यादा है उसको 1 नंबर दिया है, 1 डाईमिथाइल। रियल में क्या होता है कि इथाइल फर्स्ट आना चाहिए, पर जो नंबर है, ठीक है, उसको कम नंबर ज़्यादा ब्रांच वाले कार्बन को देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इथाइल पहले बोलेंगे एंड 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अनदर नेम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम ब्रांच का टोटल करेंगे 2 + 5 + 6 दैट इज 13। अगर हम इधर से ब्रांच नंबर देंगे तो 3 + 4 + 7 दैट इज 14, गलत हो जाएगा। सो नेम इज 2 5 6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, 8 कार्बन इज करेक्ट। अनदर नेम फॉर यू 1 2 3 4 5, द ब्रांच नंबर इज 3 + 5 इज 8, इधर से भी 3 + 5 8 हो रहा है, तो पहले इथाइल को फर्स्ट नंबर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो उसकी वजह से हम उसको 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 7 कार्बन दैट इज हेप्टेन। अब जो मेन पॉइंट है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक से ज़्यादा क्रियाशील समूह है, तो जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील समूह है सल्फेट SO3H, सल्फोनिक एसिड is greater than CHH, carboxylic acid is greater than ester CRR, then acyl halide COX, CONH2 amide is greater than cyanide, isocyanide, aldehyde is greater than ketone, greater than alcohol, or phenol is greater than SH thio, and greater than amine, ether, and this is the cyclic structure. This is also greater than double bond, is greater than triple bond. So it is the main point, double bond is more powerful than triple bond. Then N double bond N is greater than nitro, is greater than NO nitrosyl, is greater than X, greater than alkyl and benzene। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो नाइट्रो, हेलोजन, R and C6
एंड वर्ड, दे आर ऑलवेज प्रीफिक्स, पहले बोलते हैं, नाइट्रो पहले बोलते हैं, कोई भी नाम हो तो उसको प्रीफिक्स में लेना है, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ द मेन फॉर द मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप जो हम अब करने वाले हैं। पहला नेम मैं आपके लिए लाया हूँ, ये 2 फंक्शनल ग्रुप इज़ देयर, एक CO एंड सेकंड OH। सो CO इज़ मोर पावरफुल देन OH। देखिए इधर, ये CO इज़ मोर पावरफुल देन OH, तो हमको CO को मेन बोलेंगे और OH को हम ब्रांच बनाएंगे। 7 हाइड्रोक्सिल ब्रांच होगी, हाइड्रोक्सी, एंड दैट इज़ 7 कार्बन हेप्टेन एंड 2 नंबर ऑन। हमको इस सब का प्रीफिक्स और सिफिक्स हमको आना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे जैसे आते हैं मैं आपको सिखाता जाऊंगा। कीटोन को ऑन बोलते हैं, और जो ब्रांच में, अगर ये ब्रांच में नहीं है तो ऑल बोलेंगे, बट ये ब्रांच में लिया है, ये मोर पावरफुल है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड जो है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड, ये जो है ना मैंने आपको दिखाया कि डबल बॉन्ड इज़ मोर पावरफुल देन हैलोजन। सो द ब्रांच इज़ ब्रोमो एंड ब्रोमो इज़ ऑलवेज प्रीफिक्स। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 3 ब्रोमो prop 1 इन। डबल बॉन्ड को हम इन बोलेंगे। चलो सेकंड, CH2H दैट इज़ 2 कार्बन इथेन एंड 1 2 डायॉल, डाई प्लस ऑल, इसमें ब्रांच अल्कोहल है, OH बोलेंगे, अल्कोहल ऑल बोलेंगे, ओल बोलेंगे उसको, ओल। नेक्स्ट कंपाउंड, देयर इज़ 2 डबल बॉन्ड, 1 नंबर से शुरू हो रहा है, 3 नंबर से, तो डाइन बोलते हैं उसको, डाई प्लस इन, डाई प्लस इन, दैट इज डाइन। सो 1 3 ब्यूटा, 4 कार्बन ब्यूटा, 1 3 डाइन। नेक्स्ट nomenclature, here 2 branch, 1 OH and methyl. OH is more powerful, so this is 8 carbon octane, 3 all and 6 methyl। here से नंबर देंगे, क्यों कि जो OH है उसको मोर पावरफुल को लेस नंबर मिलना चाहिए। सो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। ये जो आप नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, मैंने NCERT एक्सप्लोरर, NCERT की एक्सरसाइज, एम्स, JEE, नीट के सब के जो अब तक के पूछे गए हैं क्वेश्चन IUPAC के रिलेटेड, वो नेम लिए हैं। सो आपको अलग से नीट JEE करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप बोर्ड का भी तैयार कर सकते हैं और नीट का भी तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 कीटोन ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड डायोन, डाई प्लस ऑन, 2 4 डायोन एंड टोटल 6 कार्बन, दैट इज़ हेक्सेन 2 4 डायोन। द नेक्स्ट more powerful is COOH, so it get less number 1 2 3 4 5 6। अब ये जो कीटोन है वो ब्रांच बन गया, तो कीटोन को ऑन नहीं बोलेंगे इसकी तरह, बट ऑक्सो बोलेंगे। ये याद रखना है आपको, अगर कीटोन ब्रांच में हो गया, ये पावरफुल हो गया, तो उसको ऑन की बजाय ऑक्सो बोलेंगे। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, कार्बन इज हेक्सेन प्लस ओइक एसिड, दैट इज़ हेक्सेनोइक एसिड। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो IIT JEE में या नीट में पूछा गया है, एम्स में, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम? तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हम देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये है ना, वो मोर पावरफुल है, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो नंबरिंग इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है मीन्स हेक्सा, 1 and 3 पर डाई इन है, डबल बॉन्ड है, एंड 5 नंबर पर आइन, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। वैसे ही हम साइक्लिक कंपाउंड में भी ये देखने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब पूछे गए हैं। चलो ये देखिए, तो यहाँ 1 2 3 नाइट्रो,
साइक्लोहेक्सीन। क्यों? मैंने आपको सिखाया कि ऑलवेज नाइट्रो इज़ अ प्रीफिक्स नॉट अ सीफिक्स, सो वी गिव द नंबर 3 टू द नाइट्रो, सो 3 नाइट्रो, क्योंकि हमको उसको प्रीफिक्स बनाना है इसीलिए हमको उसको नंबर 3 देना पड़ेगा, 3 नाइट्रो इधर से, वरना इधर से नंबर हम दे सकते थे। और डबल बॉन्ड जो ब्रांच में आना चाहिए तो ये ब्रांच है 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, जो चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और फर्स्ट नंबर पर जो है 1 साइक्लोहेक्सीन नहीं बोलते हैं, फर्स्ट का कोई मतलब यहाँ नहीं है। वैसे ही ये अलग देखिए, इसमें हमको इसको सीफिक्स बनाना है इसलिए यहाँ से नंबर दिया है, प्रीफिक्स बनाना है तो इधर से नंबर देना है, तो 1 2 3 तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्स। 2 इन 1 ऑल, 1 ऊपर ऑल है। सेम मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो लेस नंबरिंग किस तरफ से हम दे सकते हैं वो देखना है। यहाँ से नंबर देंगे तो 1 2 एंड 4, अगर कहीं और से नंबर देंगे तो ये नंबरिंग बदल जाएगा, यहाँ से देंगे 1 2 3 4 हो जाएगा, तो टोटल जो है लेस होना चाहिए। सो द 1 क्लोरो, एंड क्लोरो इज़ ऑलवेज प्रीफिक्स, सो 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट है आपके लिए, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ टोटल है 1 2 एंड 4, द मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, अगर हम कहीं और से देंगे तो ऑर्डर मिनिमम नहीं होगा। इसमें जो प्रीफिक्स का प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए, नाइट्रो का प्रीफिक्स बनाया है 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्लोरो एबीसीडी के मुताबिक क्लोरो पहला आएगा, सी, फिर मिथाइल आएगा एंड फिर नाइट्रो बेंजीन। सो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ हियर अरेंज। नेक्स्ट यहाँ जो है 2 क्लोरो 4 मिथाइल एंड दैट इज़ कॉल्ड एनिसॉल। ये जो बेंजीन पे अगर कोई OCH3 ग्रुप होता है तो उसको एनिसॉल बोलते हैं, और अगर बेंजीन पे OCH2CH3 होता है तो उसको फेनिटॉल बोलते हैं। अनदर नेम फॉर यू 4 इथाइल, इथाइल फर्स्ट क्यों है? क्यों ABCD के अनुसार ई पहले आएगा, फिर 2 मिथाइल एंड एनिलीन। बेंजीन पे जो NH2 ग्रुप होता है उसको एनिलीन बोलते हैं, ये दिस कंपाउंड इज एनिलीन। अनदर नेम फॉर यू 1 2 3 4 3 4 dimethyl phenol, and this compound is called phenol. This is phenol. ये सब मैंने आपके लिए नीट, एम्स और JEE से कलेक्ट किए हैं, तो ये आप ज़रूर करिएगा, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिर से ये ब्रांच 1 2 3 4 5 2 4 डाइब्रोमो 1 phenyl, phenyl is the branch, and 5 carbon, that is called pentane. Another name 1 2 3 4 ethyl, ABCD के मुताबिक ethyl, then 1 fluoro 2 nitro benzene, इसको हम ये जो होता है उसको बेंजीन बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आ गया। देखिए अगर ये चेन भी हम ले सकते हैं 4 कार्बन, बट डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए, सो करेक्ट नेम फॉर दिस इज 2 मिथाइल एंड दिस चेन इज ब्यूट 1 इन। 1 नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो उसको ब्यूट 1 इन बोलते हैं। अनदर नेम, this is the branch, less number of branch from here, 3 ethyl 4 4 dimethyl, and total 7 carbon is heptane. Next from the, this is the COOH group, it is also counted the carbon in the chain 1 2 3 4, so this is the branch, so it is 4 oxo, 5 carbon means pentane plus oic acid, pentanoic acid. Another name 1 2 3 4
1 chloro for alphabetical order 4 methyl 2 nitrobenzene. अनदर ये लॉन्गेस्ट चेन इधर से होगी, सो 3 नंबर एंड 4 नंबर पर मिथाइल है, 3,4 डाईमिथाइल, दिस इज द ब्रांच 3,4 डाईमिथाइल 6 कार्बन चेन दैट इज हेक्सेन. अनदर नेम द नंबरिंग, यस ये बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए अगर ये हम सीधी चेन लेते हैं तो 2 ब्रांच है ये, अगर ये चेन हम पसंद करते हैं तो यहाँ से ये ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, 3 ब्रांच मिलेगी. तो हम ये नेम है 3 इथाइल, 3 एंड 6 इथाइल 2 ब्रांच है, डाईइथाइल एंड 2 मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम ये 8 कार्बन है ऑक्टेन, मोस्ट टाइम पी हो गया है ये. नेक्स्ट that is 1 2 3, this is CH2 and CH3, it is propyl, so it is called propyl benzene. Next this is aldehyde group enol, and number 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द aldehyde group CHO, it is also counted 1 2 3 and 4, so it is called 2,3 dimethyl ब्यूटेनॉल, इसका एनॉल लगेगा. दिस नंबरिंग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 CH3, सो इसका नाम जो है 7 कार्बन हेप्टेन, 4 नंबर पर डबल C डबल बॉन्ड हो, ऑन बोलेंगे उसको, हेप्टेन 4 ऑन. नेक्स्ट साइनाइड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल. Latest IUPAC rule call that nitrile, and the carbon of this cyanide is also counted in the chain, so it is 1 2 3 4 5, so 3 methyl pentane nitrile 5 carbon. Next 1 2 3 4 5 6 7 3 3, here there is an bromo and chloro, here the bromo and the chloro, so now we give the name 3 bromo 3 chloro 7 carbon, it is heptane. Now this is aldehyde group 1 2 3 chloro propanol. आखिर में मैं ये लास्ट आपको करवा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये क्यों हमने चेन पसंद करी, क्योंकि मोर ब्रांचेस आएंगे, 2 2 एंड 4 पर मिथाइल होगा, ट्राई मिथाइल 5 कार्बन दैट इज पेंटेन. हियर द 1 CH group, second CH group and third CH group, and 2 number, here the numbering is given from here 1 2 and 3. 2 hydroxy, it is not alcohol, CH is more powerful, 2 hydroxy, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, 3 है ना CH, so ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. Here 2 aldehyde group on the end, hexanediol, 1 all and second enol, that is 1 2 3 4 5 6 hexanediol. ये सब IUPAC पूछे गए हैं अब तक के एग्ज़ाम में. देखिए यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पर डबल बॉन्ड है, एंड द लास्ट फॉर यू दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन, बराबर. अब 4 इथाइल डेका, 4 पर इथाइल ब्रांच है, एंड 1 5 8 1 5 एंड 8 ट्राइन, 3 डबल बॉन्ड है, दैट इज ट्राइन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस IUPAC. मैंने आपको सब IUPAC का रूल सिखा दिया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भारत के हर विद्यार्थी तक ये पहुंचना चाहिए जो IIT कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, बोर्ड में, इवन साइंस में है. और अच्छा लगा है तो शेयर भी करिए,
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आशीष एंड ठक्कर। थैंक यू। जय महाराज।